Hello students, today we will discuss, in last class we have discussed the content regarding three-dimensional geometry. In now our new content, that is to start probability. In board classes, one of the questions that comes from this chapter, that is the major marking 4, as well as one of the questions that is to be belongs by the 2 marks. So there are 6-7 marks is to be completely based on this content, 6 marks. Probability, as we earlier in classes we have discussed, what is the probability. तो probability को जब हमने describe किया था तो वहाँ सबसे पहले हमने एक बात कही थी, probability of an event that is described by probability of an event. In 10th class we have studied a formula, a total number of favorable outcome of an event divided total number of outcome of an event. ये हमने 10th क्लास में स्टडी की थी कि probability of an event is to be described in favorable outcome of an event is to be divided with total number of outcome of an event. That is the probability of an event. अब कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने वहाँ स्टडी की, तो आज हम जनरल डिस्कशन ही करेंगे इस प्रोबेबिलिटी में कि हमने लास्ट क्या पढ़ा था और आज हम उसमें क्या एडिशनल करने वाले हैं, हाउ इट कैन बी. नाउ कम वन बाय वन. हमने कहा था श्योर इवेंट अगर आपकी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दैट इज इक्वलेंट टू द 1. अगर आपकी इवेंट इम्पॉसिबल होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 0, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज टू बी ऑलवेज बिटवीन, लाइक दैट, राइट है. और क्या पढ़ा, और पढ़ा probability of an event and the probability of not an event, दोनों का sum that is equivalent to the 1. This is the probability of an event and this is probability of not an event. दोनों का सम क्या होगा, 1. नाउ द लास्ट पार्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, दैट इज नेवर द प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव. नंबर 1, ये ध्यान रखना. 2-3 थिंग्स दैट शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड कि प्रोबेबिलिटी का अगर कंटेंट वी आर डिस्कसिंग देन दीज थिंग्स इज टू बी वेरी क्लियर कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी. प्रोबेबिलिटी कितनी भी हो एक इवेंट की डिफरेंट सर्कमस्टांस पे, उन सब का सम भी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा. और द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 and sure event if it is then the probability is 1 and the impossible event then the probability is 0, and the formula of this probability is favorable outcome that is to be divided by total number of outcome. Now कुछ कंडीशंस और कुछ पर्टिकुलर थिंग्स में हमने प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया था, अभी हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे. हमने कहा एक डायस पे हम वर्क कर रहे थे तो कहा गया था कि अगर नंबर ऑफ डायस का नंबर अगर कहा गया 1 डायस इज टू बी थ्रोन. डायस के कितने डायस हैं, हाउ मेनी डायस, दैट इज 1. तो द आउटकम्स आर क्या आउटकम्स थे, तो आउटकम्स थे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Whenever a dice is to be thrown simultaneously, then the resulting outcomes is to be are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or the formula for the dice, that is the 6 power n, where n is
नंबर ऑफ डायस, कितने डायस है, हाउ मेनी डायस इज टू बी थ्रोन, दैट इज द n. Whenever 1, this is to be described 6 power 1, the result is 6, which is described like that. Outcomes are described by, are described by 6 power n. ठीक है, अब आउटकम डिस्क्राइब कर दिए एक डायस में आपने. अब डायस कितने हो गए, द डायस आर 2. डायस कितना था यहां पर, एक डायस पे रिजल्ट आपने डिस्क्राइब कर दिया, और अब डायस कितने हो गए आपके, 2 हो गए डायस. whenever 2 dice are there, in case the total outcome are 6 power 2, or which is to be described 36, now which is expressed here, कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, these are the 6 outcome. ठीक है, again 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, next 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. There are 36 outcome whenever throwing 2 dice. These are the pairs we are getting, right है. कितने डाइस थ्रो किए, 2, कितने आउटकम हुए, 36. इन आउटकम्स में क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हिडन है, दैट शुड बी यू नो वेरी वेल. These 6 outcome, that is written 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. These 6 outcomes are known as, इनको क्या बोलते हैं, टोटल 6 आउटकम. कितने डाइस थ्रो किए, 2 डाइस टू बी थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन द आउटकम्स आर 36. Out of these, the 6 outcomes are known as, क्या बोलते हैं इनको, डबलेट. क्या बोलते हैं, डबलेट. मीनिंग द सिमिलर नंबर कम्स ऑन द टॉप फेसेस, दे आर नोन एज डबलेट. क्लियर. नाउ rest of the question you know. Sum of the two number that comes on the throwing of 2 dice, on behalf of this you will calculate, right. At least sum of the number on the digits on the dice is to be more than 12. तो more than 12 तो किसी पे ही नहीं आएगा सम. मैक्सिमम सम दैट इज इक्वल टू द 12, तो रिजल्ट इज 0. द प्रोबेबिलिटी इज 0 by 36. 1 hour sum at least 5. सपोज सम एट लीस्ट 5, कम से कम 5 हो, यहां से स्टार्ट होगा कम से कम 5, और इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है. तो कौन से ऐसे आउटकम जिनमें ऐसा नहीं हो रहा, वो है 1 2 3 4 5 और 1 6.
these 6 outcome which are not the in favor of an event, then the remaining is out of 36 is 31. अगर कितने आउटकम 1 2 3 4 5 6 आउटकम is to be subtracted, then the remaining is 30 and the probability is 30 divided by 36, or we can say 5 by 6. So depend on the nature of the question. You just describe these 36 outcome on throwing of 2 dice. Students अंडरस्टूड दिस, ये ध्यान रखना, ये 2 डायस में आप वर्क कर रहे हो, आउटकम 36 बनाने हैं और देर आफ्टर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ द थ्रोइंग ऑफ 3 डायस, अगर डायस क्या कर दिए जाते हैं 3 कर दिए जाते हैं, तो अब क्या करना है आपको, व्हेन एवर थ्रोइंग 3 डायस, अगर डायस के नंबर कितने हो जाए अब 3 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6 पावर 3, इट मीन्स 216. अब 216 को ड्रा करना तो इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट सिंप्लीफाइड टू द ड्रॉ द 216 आउटकम ऑन थ्रोइंग ऑफ 3 डायस. सो क्या करेंगे, एक सिमेट्री हम बना लेंगे, एक रिजल्ट में कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेंगे. दैट्स व्हाई इट्स इजी टू राइट देम इन ए सिमिलर मैनर, राइट. तो हम क्या करते हैं, एक सिमिलरिटी बनाते हैं. देखो कितने डायस थ्रो करें 3, टोटल आउटकम कितने हुए 216, राइट. अब कैसे होंगे देखो, ईच आउटकम इज टू बी गेटिंग 6 नंबर. सपोज 1 1, तो दिस 1 1 इज टू बी टेकिंग 1 1 और 1, अगेन 1 1 and 2, again 1 1 and 3, again 1 1 4, again 1 1 5, again 1 1 6. These 6 outcome is to be by only single outcome 1 1 whenever throwing 3 dice. कितने आउटकम बने 6, किसके, सिंगल आउटकम के. तो ऐसे आप हर आउटकम के 6 आउटकम बनाएंगे. तो फर्स्ट रो जो ये आपकी ये वाली कितने आउटकम बना लेगी, फर्स्ट रो दैट कंसिस्ट कितने बनाएंगे, सिंगल आउटकम दैट मेक्स 6 outcomes, then there are 6 outcomes that makes 36 outcome. 6 multiply 6, that is the 36 outcome from a single row 1. Similarly we can write the row 2, row 3, row 4, row 5, row 6 that can also make the outcome are 36 36 36 36 36. Then the total outcome are total outcome from all row, that is 36 into 6, that is equivalent to the 216. Similarly, समझ में आई ये चीज, एक बार प्रॉपर समझ लें कि एक रो कितने, one of the row that is to be consisting 6 pair, one of the row that consisting 6 outcome, and each outcome whenever throwing 3 dice it makes 6 outcome. Then this 6 outcome is to be performed 36 outcome like that. ये 6 बनाए किसने, 1 1 ने. अब 1 2 भी 6 बनाएगा, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6 कंप्लीट. अगेन 1 3 भी 6 बनाएगा, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6. अगेन 1 4 भी 6 बनाएगा, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 3, 1 4 5, 1 4 6. सेम ऐसे ये 6 आउटकम 36 आउटकम जनरेट करेंगे. ऐसे सेकंड रो भी 36 आउटकम बनाएंगे. टोटल 6 रो कितने आउटकम बना देगी, 216. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स प्रॉपरली ध्यान दें कि हमें 3 डाइस के आउटकम बनाने नहीं है, हमें सिमिलरली वी कैन राइट, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जवाब अपने आप देना है आपको रिप्लाई. पर पहले अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ये ध्यान रखना. ऐसा नहीं हो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन को प्रॉपर समझा नहीं है और वर्क करना स्टार्ट कर दिया.
राइट। तो कितने आउटकम बनेंगे? 2 1 6। मैं रो 1 के आपने 1 1 आउटकम के बनाए, अब 1 2 के भी बना लेंगे सेम मैनर में। 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, फिर अगेन लास्ट 1 2 6। ऐसे 1 3 पे बनाएंगे। 1 3 1, 1 3 2, 1 3 4 3, 1 3 4, 1 3 5 और लास्ट 1 3 6। ऐसे 1 4 पे बनाएंगे, 1 5 पे बनाएंगे, 1 6 पे बनाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 30, 1 4 1, 1 4 2। ठीक है। नेक्स्ट ये 1 4 2 हो गया। नेक्स्ट 1 4 3, नेक्स्ट 1 4 4, नेक्स्ट 1 4 5, नेक्स्ट 1 4 6। ठीक है। ऐसे 1 5 पे बनाएंगे। 1 5 1, 1 5 2, 1 5 3, 1 5 3, फिर 1 5 4, फिर 1 5 5, फिर 1 5 6। ऐसे ही 1 6 1, 1 6 2, 1 6 3, 1 6 4, 1 6 5, 1 6 6, like this. These 36 outcome is to be performed by these 6 outcome of this. Then same, these are 36 is to be performed. Row 3 36, or these 6 row consisting 36 into 6, that is 216 outcome. So students, in today's class you just understood how we can describe the outcomes of a 3 dice, right? अब हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में भी है, कि अब आपके पास आ जाता है वर्क 3 डायस में आपने कर लिया। अब हम कोइन पर एक नज़र डाल लें कि व्हेन एवर थ्रोविंग ए कॉइन, तो जब कॉइन को आप थ्रो करोगे तो कॉइन में आउटकम 2 हैं, हेड और टेल। सो द फॉर्मूला दैट इज डिस्क्राइब बाय 2 power n व्हेन एवर द कॉइन इज टू बी डिस्क्राइब। कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन ये कितने हैं? 1। तो आउटकम भी क्या होंगे? आउटकम फॉर्मूला क्या हुआ? 2 power 1। फॉर्मूला क्या है? 2 power n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन। कितने हैं? 1 है, तो द रिजल्ट इज 2। और वो 2 कौन से हैं? हेड और टेल। कॉइन के नंबर वेन एवर दिस इज 2, इट इज टू बी डिस्क्राइब 2 power 2 और द रिजल्ट्स आर 4, विच इज डिस्क्राइब like that, right? Coin, if it is 3, then the outcomes are 2 power 3, which is describe 8, and the 8 outcomes are, coin is 3, the result is 2 power 3, then the 8 outcomes क्या हैं? हेड। परफॉर्मिंग कैसे ध्यान रखनी है, कोई लर्निंग नहीं करनी। Every student should be very clear in their mind. First 4 position is to be filled with the H, and first 4 position filled with the T, and the rest is to be taken similar into the T as well as in H. These are the 8 outcome on throwing 2 dice, right? अब dice हो गए कितने? 4। नंबर ऑफ dice आर 4 हो जाते हैं। नंबर ऑफ coin कितने हो गए? 4। आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 power 4। मीनिंग कितना हो गया? 16। अब 16 कैसे बनेंगे? तो आपको क्या करना है? H is to be right on the position of 8, like that, 1 2 3 4 5 6 7 8, and same T is to be right on the 8 position, 4 5 6 7 8, right? And these 8 outcomes is to be right here and here. H H T H T H H T T H H H, T H T T T H
TTTTHH. Again in a same manner this is to be HTT, नो T, ठीक है, प्रॉपर लिख दें। यहाँ पर भी सेम कॉपी करनी है आपको, HHT, HTH, HTT, HHH, THT, TTH, TTT, THH. These are the 16 outcome on throwing four coin. तो एग्जैक्टली अब आपको कोइन का केस हो, इन ए प्रॉपर वे यू डिस्क्राइब इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। डैश का क्वेश्चन हो, ऑलरेडी आई हैव डन, सिमिलरली यू फॉलोड टू डूइंग द वर्क। और अगर कार्ड्स का क्वेश्चन हो तो आई थिंक एवरीबडी इज नोन अबाउट द कार्ड्स। फेस कार्ड्स आर 12, राइट, और total cards are 52 and the one shoot consisting the number of cards are 13 and the one shoot meaning होता है अगर किसी एक उस कलर के होते, one color consisting 26 card, red color cards are 26, black color cards are 26, asses are 4, the name of the shoots are spade, club, diamond and heart, right? Red are 26, black are 26 and the face cards are J, K, Q, 3 in each shoot. There are 12 face cards are there. J is represented by Jack, Q is represented by Queen and K is represented by King. So there are 12 face cards. So students, today that I have described here, you will similar follow in their work, drawing and copy, and last part of this general things is to be about the days. In a ordinary year, you know that the days are 365, in a leap year the days are 366, right? In a leap year there are 52 weeks, thereafter 2 days are remaining. So the probability 52 week, meaning every week is to be consisting a days separately, whereas there are 2 days are common last of them after 52 week. So these 2 days out of any day can be asking in the question. In the answer of that question for the leap year, that is always 2/7, whereas in general year that is always 1/7. तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली आपको ये डाटा समझना है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को पढ़ना है, समझ गए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू विद द आवर एक्सरसाइज रिलेटेड मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।